Good morning, students. Hope you understand the cash management concept very well. Now, in this lecture, we are going to cover the next important item of working capital, that is inventory. We are going to talk about inventory management. Basically, in working capital, inventory constitute a most significant part of your current asset, and the majority of the company depend on this current asset only, this inventory only in India. On an average, inventory are approximately around 60% of your current asset in a public limited companies in India. And the major share of our working capital is invested in your inventory only. Large size of inventory maintained by the firm, considerable amount of fund is required. अगर आप लार्ज साइज बना रहे हैं इन्वेंट्री का, यू आर मेंटेनिंग इन्वेंट्री इन अ वेरी ह्यूज फॉर्म, तो यू नीड अ वेरी गुड अमाउंट टू इन्वेस्ट दैम. ठीक है. एंड इट इज़ नेसेसरी टू मैनेज inventory very efficiently and very effectively in order to avoid unnecessary investment block in our inventory. Basically, the word inventory we are talking about, what is the meaning of this? It is a stock of goods, or you can say is a list of goods. In other words, inventory is understood differently by various authors. In accounting language, if we are talking, it may means stock of finished goods only. But in case of manufacturing firm, okay, but in case of manufacturing concern, it may include raw material, work in progress, stores, etc. So it means inventory include tools. Tools means it includes fixtures, dies, pattern. You can say the hand tools which is used with machines like hammer and all, for operations purpose and all. Then supplies. Supplies are those items which are not get into the product, but they help us in the production process, like the soap, oil, fuel, your light bulb, lubricant, etc. Then the raw material, all the commodities such as like steel, timber, fabric, etc. ठीक है. ऑल दीज आर द पार्ट ऑफ द रॉ मटेरियल. जो भी आप प्रोडक्ट बना रहे हैं उससे रिलेटेड जो भी आप मटेरियल खरीद रहे हैं, ठीक है. देन गुड इन प्रोसेस. गुड इन प्रोसेस आर मटेरियल दैट हैव बीन पार्टली फैब्रिकेटेड, जो पार्टली बन चुका है, एंड पार्टली येट टू बी कंप्लीटेड, जो अभी बना नहीं है. ठीक है. तो वो गुड इन प्रोसेस होता है. तो दैट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ इन्वेंट्री. देन योर फिनिश गुड्स, a complete item which is ready for shipment, ready for sale, is called your finished goods. Clear, students? It means the term inventory include material, raw material, in process, finished, packaging, spare, and other stocked in order to meet your unexpected demand and distribution in the future. So that means it is the inventory. Inventory is a list of name, quantity, or you can say in quantity in a monetary value. Value of all or any group of item is considered as inventory. Now, inventory management. What exactly inventory management is? Inventory management involves the development and administration of policy, system, procedure which will minimize your total cost relative to inventory decisions and related functions such as customer service requirement, production scheduling, purchasing, traffic, etc. ठीक है. ट्रैफिक इज कंसिडर एज अ यहाँ से वहाँ ले जाने के लिए, ट्रेड के लिए जो हम करते हैं, दैट इज. इट मीन्स इन्वेंट्री मैनेजमेंट इंक्लूड ऑल द एक्टिविटीज विच वी आर टेकिंग केयर ऑफ इन्वेंट्री. जैसे आप इन्वेंट्री को मैनेज करने के लिए जो भी एक्टिविटी करते हैं, उसको फोकस करने के लिए, उसको अरेंज करने के लिए, ऑल आर कवर इनटू दिस. उन सबसे रिलेटेड जो भी एक्टिविटी आप करेंगे, दैट इज योर इन्वेंट्री मैनेजमेंट. नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट of this is characteristics of inventory.
व्हाट एग्जैक्टली इन्वेंट्री इज। देखिए, इन्वेंट्री का बेसिक नेचर होता है, इन्वेंट्री सर्व एज अ कुशन टू एब्जॉर्ब शॉक। आपने देखा होगा, कुशन्स होते हैं, तकिया है, कुशन्स हैं, आप उस पर गिरते तो आपको क्या चोट लगती है? नहीं ना, आपकी चोट थोड़ी कम हो जाती है। आप ठीक है, वो आपको सेव कर लेता है। उसी तरीके से इन्वेंट्री इज लाइक अ कुशन फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन। इट एब्जॉर्ब द शॉक। देखिए, हम लोग अनसर्टेन इन्वायरमेंट में हैं। ठीक है, अनसर्टेन इन्वायरमेंट में कब कितनी डिमांड आ जाए इमिडिएटली, कब शॉर्ट हो जाए, तो उस शॉक को एब्जॉर्व करने के लिए, उस शॉक को मीट आउट करने के लिए हमें इन्वेंट्री हेल्प करता है। जैसे कोविड के टाइम पे ये एक शॉक था हमारे लिए, उसको एब्जॉर्व हमें करने में हेल्प किसने करी? जो ऑलरेडी हमारी इन्वेंट्री थी, हमारी फिनिश गुड्स से, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग तो नहीं हो रही थी बट हमारी डिमांड तो थी। ठीक है, तो हमारी डिमांड किसने फुलफिल करी? जो ऑलरेडी इन्वेंट्री में फिनिश गुड्स हमारे बने हुए थे, उन्होंने तो करी। दे हेल्प अस एज अ कुशन, दे अब्जॉर्व अवर शॉक। Then inventory of any organization is a necessary evil. Why it is considered as a necessary evil? Because क्या कोई organization without inventory work कर सकती है? No, you need the inventory. ठीक है, आपको इन्वेंट्री को अपने ऑर्गेनाइजेशन में रखना है। अगर आप सपोज शॉपिंग करने जा रहे हैं तो आप कौन सी शॉप में जाएंगे? जहाँ बहुत ज़्यादा आपको वेराइटीज़ मिले, बहुत ज़्यादा आइटम मिले चूज़ करने के लिए, आप उस शॉप को प्रेफर ज़्यादा करते हैं। तो जहाँ इन्वेंट्री ज़्यादा है आप वहीं पर ज़्यादा पसंद करेंगे। तो इट मीन्स इट इज़ अ नेसेसरी इवेंट, आपके लिए नेसेसरी इन्वेंट्री मैनेज करना, बट इट इज़ एक्ट एज अ इवल ऑल्सो। क्यों? बिकॉज अगर आप इन्वेंट्री ज़्यादा रख रहे हैं तो यू हैव टू फेस अ कैरिंग कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। आपको उसे मेंटेन करना होगा, आपका उसमें बहुत बड़ा अमाउंट ब्लॉक भी हो रहा होगा, आपको वेयर एंड टेयर एंड ऑल ये सब मैनेज करना है, उसका इंश्योरेंस भी करवाना है। तो उसको केयर करने के लिए भी तो आपको जो कॉस्ट है दैट यू नीड टू बेयर, तो it means it is a evil. So it is act as a necessary evil which is very required, you cannot avoid, and which incurred a cost also. Okay, then inventory are the result of many interrelated decision policy within organization, because the behavior of inventory in the direct result is the direct result of the different types of policies, decisions within a company, marketing, production, finance, and your purchasing decision. It directly influences the level of inventory. आप इन्वेंट्री में कितनी इन्वेंट्री मेंटेन करना चाहती है? इट डायरेक्टली इन्फ्लुएंस बाय द डिसीजंस विच आर टेकिंग बाय मार्केटिंग डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट एंड अदर डिपार्टमेंट्स. It is not a decision which is taken isolated by the production department only. Then inventory provide production economies also. ठीक है, आपने जब इकोनॉमिक्स पढ़ी थी आपने देखा था रिटर्न टू स्केल, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। तो उसमें क्या इकोनॉमी स्केल कैसे आपका अचीव होता है? व्हेन यू आर यूटिलाइजिंग योर फुल कैपेसिटी। ठीक है, तो जब इन्वेंट्री मेंटेन करें इट मीन्स यू आर यूटिलाइजिंग योर फुल कैपेसिटी। ठीक, जब आप फुल कैपेसिटी यूज़ कर रहे हैं तो इट मीन्स आपको इकोनॉमी ऑफ स्केल अचीव आप कर रहे हैं। आपको वन प्रोडक्ट ट्रांसफ़र करने के लिए अगर एक गाड़ी आप बुक करते हैं और उसी गाड़ी में 3 प्रोडक्ट आ सकते हैं, तो आप पूरी 3 प्रोडक्ट डाल के तो उसे ले जाएंगे, तो आपके लिए कॉस्ट क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। आप पूरी इकोनॉमी यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, यू आर एबल टू मिनिमाइज योर ऑर्डर कॉस्ट, योर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, योर अदर कॉस्ट ऑल्सो। ठीक है, तो इट हेल्प यू टू रिड्यूस द नंबर ऑफ सेटअप कॉस्ट। क्लियर? अगर आप इन्वेंट्री मैनेज कर रहे हैं तो दिस आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ inventories. Now we are going to cover the factors that influence our inventory. There are n number of factors which influence our inventory level. Okay, first is the lead time. LEAD, lead time. Lead time means आपने रिकॉग्नाइज करी नीड कि क्या नीड है, और जब तक वो फुलफिल नहीं हुई तब तक के बीच का जो टाइम पीरियड है दैट इज कॉल्ड लीड टाइम. ठीक है, इजी लैंग्वेज में अगर हम बात करें, आपका रॉ मटेरियल आया और रॉ मटेरियल जब सेल आउट हुआ फिनिश गुड में कन्वर्ट होके, ठीक है, तो फिनिश गुड में कन्वर्ट करने तक का जो टाइम था दैट इज कॉल्ड लीड टाइम. तो ये लीड टाइम जितना ज़्यादा होगा उतनी इन्वेंट्री आपको चाहिए, और जितना कम होगा आप इमीडिएटली कन्वर्ट करते जा रहे हो तो आपको इसकी इन्वेंट्री रिक्वायरमेंट कम हो जाती है. ठीक है, देन योर री ऑर्डर पॉइंट कि किस लेवल पे आप अपने
स्टॉक को दोबारा ऑर्डर करते हैं, एंड इट इज़ टोटली डिपेंड अपॉन योर कंजम्पशन रेट, योर ड्यूरेशन ऑफ योर लीड टाइम कितना है, ठीक है। देन वेराइटी रिडक्शन, क्योंकि अगर आप वेराइटी रखेंगे ज़्यादा से ज़्यादा तो यू नीड हाई वेराइटी, मीन्स हाई रॉ मटेरियल, हाई फिनिश गुड्स, ठीक। तो इट इज़ बेटर टू रिड्यूस योर वेराइटीज़, तो उतनी वेराइटी रखी जितनी ज़रूरी है। तो इट हेल्प यू टू डाउन साइज योर इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। देन कॉस्ट ऑफ होल्डिंग इन्वेंट्री कितनी है आपकी। अगर इन्वेंट्री को होल्ड करने की कॉस्ट ज़्यादा है तो आप इन्वेंट्री को होल्ड नहीं करेंगे। लाइक शिप अगर आप शिप मेकिंग इंडस्ट्री है तो शिप क्या वो बना के रखते हैं कि कस्टमर आए चूज़ करे ले? नो, क्योंकि कॉस्ट ऑफ होल्डिंग दैट इन्वेंट्री शिप इज़ वेरी हाई। दैट्स वाई दे आर मैन्युफैक्चर द शिप ऑन ऑर्डर ओनली, और जिस दिन डिलीवर होना उसी दिन या उससे एक दिन पहले आपका बन के तैयार होता है, ठीक। तो दैट इज़ ऑल्सो इफेक्ट योर लेवल ऑफ इन्वेंट्री। देन योर सेफ्टी स्टॉक, बफर स्टॉक आप कितना मेंटेन करते हैं, कितनी अनसर्टिनिटी आपके ऑर्गेनाइजेशन में, आपके बिजनेस में है, आपके प्रोडक्ट में है से रिलेटेड, उसमें वो भी आपके इन्वेंट्री लेवल को डिसाइड करती है। देन योर मटेरियल प्लानिंग, कि हाउ यू आर इंश्योरिंग योर क्वालिटी, योर टाइम शेड्यूल ऑफ रिक्वायरमेंट। तो जो मेटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग है दैट इज़ ऑल्सो इफेक्ट अवर इन्वेंट्री लेवल, ठीक है। आपकी इन्वेंट्री कितनी जल्दी स्क्रैप में कन्वर्ट हो रही है, ऑब्सोलीट हो रही है, दैट इज़ ऑल्सो इफेक्ट अवर इन्वेंट्री लेवल। अगर आपकी इन्वेंट्री बहुत जल्दी स्क्रैप होती है, आप देखते हैं तो इन्वेंट्री आप ज़्यादा नहीं रखते, ठीक है। लाइक योर सर्विस लेवल ऑल्सो, कि किस तरह का सर्विस आप देना चाहते हैं। आप चाहते हैं मेरे शोरूम में जो कस्टमर आए उसे हर टाइप का मॉडल दिखे और हर टाइप से सेटिस्फाइड हो, हर कलर दिखे, तब जाके आप अगर आप इस तरह का सर्विस लेवल दे रहे हैं तो इट मीन्स यू नीड टू मेंटेन अ हाई इन्वेंट्री, फाइन। देन द क्वांटिटी डिमांडेड, कितनी क्वांटिटी आपके ऑर्गेनाइजेशन में डिमांड की जाती है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की, बेस्ड ऑन दैट ऑल्सो यू आर मेंटेनिंग द इन्वेंट्री। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ we are talking about objective of inventory management. Why this object inventory management is so important? Basically inventory management firm have a problem to meet two conflicting needs. There are two conflicting needs, उसको maintain करना हमारे लिए जो ज़रूरी होता है यहाँ पर। First objective is to maintain a large size of inventory for efficient and smooth production and sale operation. आपको बहुत बड़ी इन्वेंट्री मेंटेन करनी है ताकि आपका बिजनेस इफ़िशिएंटली स्मूथली चले, प्रोडक्शन स्मूथली चले, सेल्स ऑपरेशन अच्छा चले। और दूसरा ऑब्जेक्टिव जो है जस्ट अपोजिट इसका, दैट इज़ टू मेंटेन अ मिनिमम इन्वेस्टमेंट इन इन्वेंट्री टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिटेबिलिटी। कम से कम हम इन्वेस्टमेंट करें ताकि हमारी प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज हो सके। हमारा मेजर जो इन्वेस्टमेंट है वो कहीं इन्वेंट्री में ब्लॉक ना हो जाए, ठीक है। बोथ एक्सेसिव एंड inadequate inventory are not desirable. ऑर्गेनाइजेशन में कम हो बहुत ज़्यादा और बहुत ज़्यादा हो, ये दोनों ही चीज़ अनडिज़ायरेबल होती है। तो दो कॉन्फ्लिक्टिंग ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे इन्वेंट्री मैनेजमेंट के, दैट वी नीड टू focus over here. These are the two dangerous point you can say within which firm should operate. The objective of inventory management should be to determine and maintain optimum level of inventory investment, you can say. And firm should avoid a situation of over investment and under investment in inventories, ठीक है। तो दोनों में ही आपके लिए प्रॉब्लम है। तो ऑब्जेक्टिव क्या हो गया बेसिकली, टू मेंटेन अ ऑप्टिमम लेवल ऑफ इन्वेंट्री, ठीक है। व्हाट इज द डेंजर एसोसिएटेड विद ओवर इन्वेस्टमेंट, अगर आपने इन्वेंट्री ज़्यादा रखी, द कॉस्ट ऑफ होल्डिंग द इन्वेंट्री इज क्या होगी आपकी, लॉस ऑफ प्रॉफिट आपका, बिकॉज ज़्यादा से ज़्यादा कैश जो है क्या है, टाइड अप हो गया आपकी इन्वेंट्री में, ब्लॉक हो गया। एक्सेसिव कैरिंग कॉस्ट इज देयर, योर रिस्क ऑफ लिक्विडिटी इज देयर, इमीडिएटली आप उसे कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे कैश में। फिजिकल डिटोरिएशन होता है आप लोगों की इन्वेंट्री का, ठीक है। आपकी स्टोरेज है आपकी बहुत ज़्यादा आपको चाहिए, रिस्क ऑफ ऑब्सोलेंस इज ऑलवेज देयर कि कब ऑब्सोलीट हो जाए, फाइन। तो दीज आर द danger of over investment, you can say, or this is the holding cost or carrying cost. Then inadequate danger, inadequate danger means अगर आपने इन्वेंट्री नहीं रखी तब आपको क्या कॉस्ट बेयर करनी पड़ेगी, ठीक है। तो दैट इज रिलेटेड टू योर ट्रांजैक्शन कॉस्ट, यू कैन से, फाइन। दैट इज प्रोडक्शन होल्ड अप, फाइन। तो
आपके प्रोडक्शन क्या है, अगर इन्वेंट्री नहीं होगी तो प्रोडक्शन आपका रुक जाएगा, ठीक है, आप वेट कर रहे हैं, ठीक। और फेलियर हो सकता है आपका कि आपने डिलीवरी जो आपकी थी कमिट नहीं कर पाए टाइमली, आपकी इमेज ख़राब हो सकती है, लॉस ऑफ कस्टमर हो सकता है अगर आप टाइमली उसको सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं आइटम को। तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स विद inadequate inventory also. Therefore, effort should be made to place an order at the right time with the right source to acquire a right quantity at the right price and quality. Okay, तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट का बेसिक काम आपका ये है। In this is all about today lecture. In next lecture we are going to talk about the how we are managing, how we are deciding the optimum level of inventory, that is EOQ, economic order quantity, with the numerical. Okay students, hope you understand. Thank you for the day.